आप सबके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे। मैं उन सवालों को शब्द देने का प्रयास करता हूँ। पहला, क्या हुआ जो अभी हाल में, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये प्रीवियस स्टैंड ऑफ से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक चुमार में भी हुआ, एक डेप्संग में भी हुआ, एक डोकलाम में भी हुआ, तो डेमचौक में भी हुआ, तो क्या उनसे ये कैसे फ़र्क है और इसमें चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं, आज की तारीख में स्टेटस क्या है, करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और आगे आ जाने का क्या हो सकता है। तो आज के प्रेजेंटेशन में मैं इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। ओके, टुडे I am going to talk to you about Indo-China standoff 2020. And before I go on this subject, let me say that India and China, though never from time immemorial, the history of China to India, whose spiritual guru we had been, has not been the best in last about say 200 years. It's a history of deceit, treachery and doublespeak. As we see today's presentation, we will come to know all about it. Before I go to the subject proper, let me introduce, in my introduction, give you some terms and some background information that will help you to understand the subject a little better. First, there are two words, sovereignty and suzerainty. Sovereignty of a nation is when a state has full rights to take decisions with respect to the matters related to his state without any interference from any other state. Whereas suzerainty entails a state enjoys special rights over another. The first is called the suzerain and the latter is called the tributary of vassal state. He provides, the suzerain provides the military support to the vassal state, and in return he reaps a lot of benefits like freedom from tariff, special taxes, and the remunerations for the army when it places. Actually, 1664 is a defining moment in modern history when Treaty of Westphalia happened in Europe, and the word sovereignty was defined because at that time it was decided that the country's boundaries would be inviolable. Please note this fact, that country's boundaries would be inviolable. So in case if some country becomes a tributary state to the first state, then his boundaries are not taken care of. Now in this case, a very strange case is of Tibet versus China. Tibet became a vassal state of China for a long time, and it remained so till 17th century during Qing dynasty's period, when the central authority became weak, they became independent, and they remained so till 1959 when China captured them. And in this case, one thing which needs to be taken into account is, historically, Emperor of China always saw himself as the center of the world, civilized world, and treated Tibet as a tributary state. Now this map which I am showing you, though slightly dated in the sense that when J&K was one state, however it very clearly shows three portions. First portion is, which is in green, which has been under the illegal occupation of Pakistan since 1947, or you can say 1st January 1949, when ceasefire happened. What is shown in yellow,
that is Shaksgam Valley, Aksai Chin, and coming down, and certain portions in the Arunachal, this is under China. And this is because our boundary or line of actual control is not defined. And over a period of time, by what Europeans or Americans use the term salami slicing, they had been advancing and they had been capturing certain portions. Now, let's go into the historical perspective of this. 1834 was the year when one Sikh general, General Zorawar Singh, he captured Ladakh for Sikh Empire. 1942, there was a treaty between Sikh Kingdom and Chinese, in which it was decided that there will be no transgression between the two countries and the historical boundaries would be maintained. Later, Second Sikh battle in 1846, British defeated Sikh and they became the legate of the Sikhs. So whatever was Sikh Empire, it came to British. Now they wanted to demarcate the boundary with China. China said, no, we will continue with the traditional boundaries. And boundary was not demarcated. In 1865, there was a civil service officer by name Johnson. So he gave a concept of a boundary. He was from Survey of India and he gave a concept of boundary. And it was such that Quinlone Range and beyond that is east of Quinlone Range, about 1800 square kilometers, was part of British India. And there's a fort which was made by Maharaja J.N.K. at Saidullah and things like that, it remained. Point to be remembered at this point, that Xinjiang at that point was East Turkestan as not part of China. So China was not really concerned with it. 1878, China captured Xinjiang. And now they started becoming concerned about this portion which was beyond Karakoram Pass and Aksai Chin, because it provided them certain connectivity. China put the boundary marker in 1892 at Karakoram Pass. Britishers reviewed the situation and they came out with what is called as Johnson-Ardagh line, which was along the Quinlone Range because that was more defensible. Ardagh was a general, so that's why he thought was like a military man. So he said that it will be better around the watershed, that Quinlone Range, the boundary should be there. But China spoke nothing against it. Now there was, in 1899, yet another line came up, and that is called Macartney-MacDonald line, which was proposed along Karakoram Range. Now Karakoram Range, why I am saying, Karakoram Pass is a very important part which you will see even subsequently. Now there are two interesting periods in this case. 1917 to 33, when Chinese Postal Department showed Aksai Chin as part of India. And 1925, Beijing University published a map, again Aksai Chin was shown part of India. So when India became independent, Johnson-Ardagh line we accepted, that is Quinlone Range, where Aksai Chin was part of us, because that is what China was also doing. Although we kept that boundary as undemarcated boundary in 1947. In 1954, the then Prime Minister Jawaharlal Nehru gave a direction that boundary should be shown, where Aksai Chin should be shown part of India. And that is how the Survey of India maps became, that Aksai Chin became part of India. Now what happened? 1963. By now China started having a different, because in 1957 they made a road connecting Lhasa to Xinjiang, where 179 kilometers passed through Aksai Chin. And India did not even come to know. In 1957, this happened. And thereafter, 62, what happened? There was a war. And in this case, another interesting part happened, that
59, the then Prime Minister of China, Mr. Zhou Enlai, suggested to Nehru that let's have a line of actual control. And line of actual control was something which I will talk a little later. But then Nehru rejected that concept. So post 62, in 63, Pakistan, so 62 के बाद जो पाकिस्तान ने क्या किया कि जो उनके कब्जे में हिस्सा था काराकोरम पास के आगे, जिसको कि जो मैंने पिछले नक्शे में दिखाया सक्शगाम वैली, वो उन्होंने चाइना को दे दिया और अपनी बाउंड्री सेटल की with the proviso that as and when final settlement of the boundary between India and Pakistan takes place, it will be taken care of. अभी इसके बाद इसमें एक ईस्ट का भी एक मुद्दा आता है कि जो आज हमारा अरुणाचल है उसमें क्या बाउंड्री का स्टेटस था। सो 1913-14 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तिब्बत था एक पार्टी, एक ब्रिटिश इंडिया था और एक चाइनीज़ थे, क्योंकि चाइनीज़ की सुजरेंटी थी तिब्बत के ऊपर। और उसमें एक बाउंड्री लाइन डिसाइड हुई एंड वो थी जिसको कि एक उस वक्त के एक जो सर्वे ऑफ इंडिया के थे ऑफिसर मैकमोहन, तो मैकमोहन लाइन के नाम से वो आई। तीनों ने उस पर साइन किया नक्शे पे। लेकिन जब ये नक्शा जब डिटेल बना, क्योंकि ये जो माइल मैप था, अब यही जब मीटर मैप बनने लगा, जब डिटेल होने लगा, तो चाइना रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से, बट तिब्बत ने साइन कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको नक्शे को क्लासिफाइड रखा। 1937 में उन्होंने इसका नक्शा पब्लिश किया और 1938 में उन्होंने दिखाया कि भाई मैकमोहन लाइन जो है वो तिब्बत और इंडिया की बाउंड्री है। ये जो था ये एक एंग्लो चाइनीज़ कन्वेंशन है 1906 का, उसके ख़िलाफ़ था। इट्स अ वायलेटिव ऑफ दैट, बट बी एज इट में। सो ईस्ट में बाउंड्री जो बन गई वो मैकमोहन लाइन, और जो वेस्ट में बाउंड्री इंडिया कह रहा था कि जॉनसन एंडार्क लाइन, वैसे चाइना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से आता है? ये तकरीबन 4057 किलोमीटर लंबा है और जिसमें कि वेस्टर्न में ये लद्दाख से पास होता है, जो यूटी है आजकल लद्दाख यूटी, थोड़ा ऐसा JNK का है, फिर मिडिल में उत्तराखंड हिमाचल में, और ईस्ट में ये है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के थ्रू जाता है। 1959 में चावल जैसे मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने एक पहली बार इस टर्म यूज़ किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उन्होंने एक पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को और उन्होंने कहा कि हम इसको जहाँ पे अभी एज एंड व्हेन ईस्ट में हम मैकमोहन लाइन मान लेते हैं, लेकिन वेस्ट में जहाँ पे आज की सिचुएशन में लोग हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था कि अक्साई चीन उनके पास रहे, क्योंकि अक्साई चीन के थ्रू उनकी रोड जा रही थी। तब उसको वेस्टर्न एक्सप्रेस वे बोलते थे, आज उसको G219 बोलते हैं। तो ये और ये आगे G219 या वेस्टर्न एक्सप्रेस याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आगे इसका बहुत महत्व आएगा जब हम गलवान की बात करेंगे। तो ये लेटर ऑब्वियसली नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नेहरू ने कहा ये कोई बकवास है, हम तो जो लाइन मानते वही। तो हमारा नक्शा आज तक इसीलिए नहीं बदला जो नेहरू जी ने 1954 में दिया था, जॉनसन एंडार्क लाइन के हिसाब से नक्शा रहा ना। ये जो हम लोगों के 62 की लड़ाई हुई, उसमें जहाँ तक चाइना सोचता था कि वो अंदर आया, और वो मैं नक्शा दिखाऊंगा कहाँ तक वो आए थे, और लेकिन उसके बाद वो 20 किलोमीटर पीछे गए, उनका भाई ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। 1993 में एक इंडिया और चाइना में एक पैक्ट हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि एग्जिस्टिंग लाइन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी हम लोग इज्जत करेंगे। इंडिया ने चालाकी से उसमें एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल वर्ड डालने की कोशिश की। कुछ प्रेशर्स थे, हमारे NEA ने भी नहीं माना, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर JN दीक्षित साहब थे उन्होंने भी नहीं माना, और चाइना ने तो बिल्कुल ही नहीं माना, एग्जिस्टिंग नहीं। क्योंकि अगर आप सोचो कि उनके क्या इरादे थे, जो मैंने शुरू में बोला कि डिसीट, ट्रेचरी और डबल स्पीक, ये चाइना का गुण है। सो नाउ मुद्दा ये है इस वक्त आज की तारीख में, कोई ये बोले कि ये LAC है, रॉन्ग। कोई LAC है ही नहीं।
LAC कोई डिफाइंड है ही नहीं। जैसे LC है, उसमें नक्शा है, उसमें मालूम है कौन सा पहाड़ है, कौन सा पेड़ है, कौन सा नदी है, कौन सा नाला है, कहाँ है, सब कुछ है डिफाइंड। इसमें अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ भी हम लोग जब श्रृंगार वगैरह की बात करेंगे तो मैं इस बात को और वो क्या कर रहे हैं चाइना, पहले उन्होंने अक्साइचिन दबाया 50s में, फिर क्या हुआ कि 2013 में 1962 में वो और अंदर आए, फिर 1986 में वो आए सामदोरोंगचू में, फिर उसके बाद उन्होंने अगली जो कार्रवाई की 2013 में देपसंग में आए, उसकी अगली कार्रवाई की कि 2014 में चुमार में आए, 2017 में डोकलाम में आए। तो इस तरह कर करके ओवर ए पीरियड टाइम 38,000 स्क्वायर किलोमीटर तो पहले दबा चुके हैं। अब 640 किलोमीटर, करीब 200 से 300 जो इन्होंने इंकर्शंस किए हैं उससे लिए हैं, और ये इंकर्शंस उनके बढ़ते जा रहे हैं, हर साल ज़्यादा होते जा रहे हैं कि 2019 में करीब 660 LAC वायलेशंस हुए पिछले साल, और जिसकी वजह से अब उन्होंने जिस तरह से अपने वो LAC समझते हैं जो पहले कितनी थी 4057 किलोमीटर, अब वो घटा के उन्होंने कहते हैं नहीं जी बाकी तो सब सेटल्ड है, सिर्फ 2000 किलोमीटर हमारी अनसेटल्ड है, क्योंकि वो दबाते जा रहे हैं ज़मीन। तो इसके बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर करीब 22 राउंड हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई उससे यूजफुल रिजल्ट नहीं निकला है। ये जो नक्शा मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नक्शा है। हम लोग जो थे हाजी लंगर तक जाते थे, ये देखिए कि लाल रंग की लाइन है बीचों बीच में गई है ये नक्शे के, तो ये लाइन जो थी ये हम लोग पेट्रोलिंग करते थे, और इसमें हमारा हाजी लंगर के पास हमारी एक पेट्रोल, जब उन्होंने वो ये इसमें देखिए कि एक ये रोड आपको जो दिख रही है ये येलो रंग की है, ये वो 219 है, तो ये इस पर उन्होंने एक बार हमारे पुलिस पेट्रोल को उन्होंने एम्बुश किया था। इसमें आप देखिए जो कुल्लोन रेंज है, राइट में बिल्कुल कुल्लोन रेंज ये है, मैं दिखा रहा हूँ, तो ये रेंज जो है ये हमारी क्लेम लाइन है, और उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ये जो उनकी क्लेम लाइन है जो काराकोरम पास के ऊपर से जा रही है, ये देखिए काराकोरम पास है, ये वाली लाइन वो मानते हैं कि ये चाइना यहाँ तक है। अभी इस सिलसिले में जो बातचीत हमारी उनकी होती रही है, करीब 6 या 7 पकड़ो पैक्ट हुए हैं 1954 से, और हमारे उनके अकॉर्ड हुए हैं। पहला अकॉर्ड हुआ था 1954 में, जिसको कि बहुत ही फेमस वर्ड यूज़ होता है पंचशील एग्रीमेंट। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग में सीताराम येचुरी ने कहा था कि हम लोगों को पंचशील की बात करनी चाहिए। ना आप देख लीजिए इसमें चाइना इसमें क्या क्या कर रहा है। पहला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो क्या वो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की इज्जत कर रहे हैं? नहीं, पहले ही उन्होंने वायलेट कर दिया। क्या हमारी सॉवरेनिटी की इज्जत कर रहे हैं? नहीं, तो पहला ही उन्होंने वायलेट किया, 62 में भी किया था। दूसरा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, तो डंडे में, बास्केटबॉल बेसबॉल बैट में तार बांध के लाना, कीलें जड़ के लाना, उससे मारपीट करना, ये भाई साहब ये कौन सा नॉन एग्रेशन है? वो क्यों फायर नहीं कर रहे हो उसका मैं बाद में अभी बताता हूँ। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स, चाहे वो मिज़ोरम रहा हो, चाहे नागालैंड हो, इनकी जो इंसर्जेंसीज थी उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। इक्वली एंड म्यूचुअल बेनिफिट, तो आप देखिए हमने उनको सारे बेनिफिट दिए, हमारा उनसे एडवर्स ट्रेड है, $48 बिलियन का नेगेटिव ट्रेड है हमारे साथ उनका, कि मतलब हमारे यहाँ से जो उनके यहाँ से एक्सपोर्ट हमारे यहाँ और हमारे यहाँ से उनके यहाँ एक्सपोर्ट है, उसका गैप है करीब $48 बिलियन पिछले साल। तो उन्होंने इसको तो नहीं एड्रेस किया। NSG में हमारी मदद नहीं की, मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में मदद हमारी नहीं की। तो किस वजह से उन्होंने हमारा इसमें क्या ये पॉइंट उन्होंने इक्वली एंड म्यूचुअल बेनिफिट का कोई फ़ायदा दिया, एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आई थिंक इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया जिसको कि हम कह सकते हैं कि म्यूचुअली पीसफुल को अभी भी जो कर रहे हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं है।
दूसरा पैक्ट हुआ 1993 में। 1988 में राजीव जी गए थे वहाँ पे, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री। मैं इज्जत करूँगा कि इंदिरा जी ने कभी कुछ नहीं, उनको बिल्कुल कोल्ड शोल्डर किया। लेकिन जो 67 में उन्होंने एक हिमाकत की नाथुला में आने की, तो जनरल सगत सिंह ने जो उनको वहाँ पे उनकी कुटाई हुई, और तब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने उनका सपोर्ट किया, तो उसके बाद वो 50 साल चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कोई हिमाकत नहीं की। 93 में जो हुआ उसमें जो 3 पॉइंट थे जो ख़ास इम्पॉर्टेंट थे। पहला था मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस की दोनों जो बॉर्डर है उसके ऊपर पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, उसको टच नहीं करो। लेकिन वो तो करते जा रहे हैं उसके बाद भी। देयर शुड बी नो यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेट टू यूज़ ऑफ फोर्स, कि मतलब तो हम फोर्स यूज़ करेंगे ना फोर्स यूज़ करने की धमकी देंगे। तीसरा था कि LAC का आदर करेंगे ना, कौन सी LAC ये उन्होंने नहीं बताया। LAC का आदर करेंगे लेकिन कौन सी LAC ये नहीं बताया। ये वैसा हो गया कि मैं बोलूँ कि जी मैं आपके घर आने वाला हूँ और मैं खाना खाऊंगा, खाना अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या होगा ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आऊँ और फिर आप खाना खिलाओगे तो ये तो बहुत बेकार तुमने खाना खिलाया, ये तो हमें पसंद ही नहीं था। तो ये वैसी वाली बात है। दूसरा एक 1996 में अगला पैक्ट हुआ जिसमें कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात हुई, और उसमें यह हुआ कि भाई नो वॉर, लड़ाई नहीं होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, कि नो यूज़ ऑफ मिलिट्री अगेंस्ट द अदर साइड स्पेशली विदिन 2 किलोमीटर्स ऑफ LAC, कि LAC के 2 किलोमीटर में हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा और आर्मी भी नहीं यूज़ होगी। उनके यहाँ तो PLA है, वो पुलिस भी है, वो आर्मी भी है, वो एयरफोर्स भी है, वो नेवी भी है, तो हमारे तो ITBP रहती थी। तो लेकिन जब तुम अगर ये हरकत कर रहे हो तो हथियार का इस्तेमाल तो किया ही उन्होंने। अगला जो था 2003 में एक अकॉर्ड हुआ, जबकि अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो अटल जी के टाइम में ये 1996 देवगौड़ा जी हुआ था, 1993 वाला नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो अटल जी के टाइम में ये डिसाइड हुआ कि जो सिक्किम जिस पे कि वो अपना क्लेम कर रहा था, उसने कहा कि ये हिंदुस्तान का एक स्टेट हम मानते हैं। इसके बदले में इंडिया ने बोला कि उन्होंने जो कब्ज़ा किया था 1959 में तिब्बत के ऊपर, हमने उसको नहीं माना था, लेकिन 2003 में उसको हमने मान लिया। और हमने कहा तिब्बत नहीं बोला, हमने बोला तिब्बत ऑटोनमस रीजन ना। ये बहुत सोच समझ के अटल जी ने किया, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि अक्साई चीन उसका पार्ट नहीं था, सिक्किम उसका पार्ट नहीं था, और जो तवांग वाला एरिया अरुणाचल वाला है वो उसका पार्ट नहीं था। नहीं तो वो बोलते कि वो तो ईस्टर्न लद्दाख है वो हमारा हिस्सा, वो वेस्टर्न लद्दाख है वो हमारा हिस्सा। तो इस तरह से ईस्टर्न तिब्बत है तो हमारा हिस्सा है, तो वो होगा। 2005 में फिर एक और पैक्ट हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि अगर आमने सामने आ गए बॉर्डर पे जो है, तो वो सेल्फ रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे और फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने अपने साइड में चले जाएंगे। 2013 में फर्दर इसको किया गया कि कोई भी साइड जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगी, और ना तो यूज़ करेगी ना उसकी यूज़ करने की धमकी देगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई पेट्रोलिंग करते समय एक दूसरे आमने सामने आ गए तो वो फॉलो नहीं करेंगे, एक दूसरे की पेट्रोल को टेल नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे। अगर ये भी हो जाए कि LAC जहाँ की इसके डिफाइंड नहीं है, उस एरिया में भी अगर दूसरी टीम जाती है तो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, आगे जैसे हम लोग बात करेंगे, फिंगर 4 पे आके बैठ गए कि इसके आगे हम तुम्हें पेट्रोलिंग नहीं करने देंगे। तो ये इस ट्रीटी के इस पैक्ट का वायलेशन है कि नहीं ना। इन सब के चलते हुए आप सबके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, मैं उन सवालों को शब्द देने का प्रयास करता हूँ। पहला, क्या हुआ जो अभी हाल में, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये प्रीवियस स्टैंड ऑफ से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक चुमार में भी हुआ, एक डेप्संग में भी हुआ, एक डोकलाम में भी हुआ, तो डेमचौक में भी हुआ, तो क्या उनसे ये कैसे फ़र्क है, और इसमें चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं, आज की तारीख में स्टेटस क्या है, करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और आगे आ जाने का क्या हो सकता है। तो आज के प्रेजेंटेशन में मैं इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा ना। ये जो नक्शा आप देख रहे हो, ये आज के लिए बड़ा टेलिंग नक्शा है। ये नक्शा अगर आप देखिए ईस्ट से
कहाँ से? ताइवान से शुरू हो रहा है। ताइवान से नीचे आओ, दैट इज़ हो गया क्या? ईस्ट चाइना सी। नीचे आया साउथ चाइना सी। तो ताइवान में चाइना और ताइवान की प्रॉब्लम है, उनके एयर स्पेस को वाले। अगर आप फर्दर और जाओगे ईस्ट चाइना सी में और फर्दर आप जाओगे तो जापान में सेनकाकू से भी उनको प्रॉब्लम है, तो पहली चीज़ तो वहाँ से शुरू करके उसके बाद ताइवान के बाद हांगकांग में आजकल डिस्टर्बेंस चल रहा है। उसके बाद साउथ चाइना सी में उन्होंने क्या किया? वियतनाम की बोट ही डुबो दी, अपने बोट जहाज़ से टक्कर मार के उसको बोट डुबो दिया। इंडोनेशिया को भी धमकी दी, मलेशिया को भी धमकी दी। उसके बाद आप आ जाओ इंडिया में, तो नाकुला, जो कि जैसा मैंने बताया कि 2003 में ये हो गया कि सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन नाकुला जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है सिक्किम में, उस पर उन्होंने घुसने की कोशिश की और कहा कि ये हमारा हिस्सा है। अगला उन्होंने क्या किया? कहाँ पे गए? लिपुलेख पास में, जो वो नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने नेपाल को भड़काने की कोशिश की है। इसके बाद आप चलिए आगे, जो लद्दाख का एरिया जब आता है तो वहाँ पे क्या है कि जो अगली चीज़ क्या आ रही है? पहली चीज़ क्या है? डेमचौक का इलाका, उसके बाद फिंगर्स का इलाका पेंगोंगसो के ऊपर, तीसरा आगे जा कर के गलवान घाटी का इलाका, और उसके आगे चौथा दौलत बेग ओल्डी या यू कैन से देपसंग प्लेन्स का इलाका। ये सब जगह उनकी प्रॉब्लम है। तो ये जो है ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये सबसे ही उसका इस वक्त प्रॉब्लम है चाइना की। क्यों है ये हम बाद में देखेंगे ना। 5-6 मई की तारीख को क्या हुआ? चाइनीज़ इनकर्शंस पता चले कहाँ, लार्ज। उन्होंने LAC के ऑल अलोंग LAC शुरू किया, नाकुला में सबसे पहले किया, फिर फिंगर एरिया में किया, उसके बाद गलवान घाटी में किया, और अभी परसों फ्राइडे से देपसंग के अपोजिट भी वो आने की कोशिश कर रहे हैं ना। इस बार के इनकर्शंस जो है डिफरेंट है। पहले क्या होता था? वो आते थे, कुछ दिन रहते थे, पीछे उनका कुछ नहीं है, लेकिन आके अवश्य दिखाते थे कि देखो ये हमारा इलाका है, और वहाँ रहने की कोशिश करते। 73 दिन वो डोकलाम में भी रहे, लेकिन वापस चले गए। अब कैसे? वो पूरी तैयारी के साथ आए, उनके पीछे उनके टेंट भी आए हैं, उनके पीछे उनकी गाड़ियाँ भी आई हैं, उनके पीछे उनके टैंक भी आए हैं, पूरा लॉजिस्टिक्स चेन आ रही है। तो मतलब एक तरह से इस तरह से अब किसे आए हैं जिससे कि आके वो यहाँ पे बैठना चाहते हैं। 9 मई को मीडिया ने एक रिपोर्ट किया, 10 तारीख को रिपोर्ट किया कि 9 को नाकुला में कुछ चाइनीज़ मुगुथांग करके एक वैली है, उसमें आ गए और उन्होंने कहा कि भाई ये इलाका खाली करो, ये हमारा इलाका है। 150 लोग थे तकरीबन। वो तंगुता हुई और लेकिन लोकल कमांडर्स ने आपस में बात करके स्थिति को सुलझा लिया। आप लोगों को याद होगा कि एक इसमें वो सुनने में आया था कि एक हमारे कैप्टन साहब ने उनके मेजर साहब को मार दिया, उनकी नाक फट गई। वो यहीं हुआ था। हाँ, तो ये सरप्राइजिंग नहीं था। ये मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग था। जैसे हमने बताया कि पहले जो ट्रेड प्रोटोकॉल हुआ था तो नाकुला के बारे में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। तो चाइना को डिसाइड किया कि भाई अपने नक्शे दोबारा बनाओ और देख लो कि वो जो नक्शा एक्सचेंज हुआ था उसके हिसाब से ही है। ये जो नक्शा मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए कि आप ईस्ट में नाकुला सेक्टर में ये 9 तारीख को आए, 150 ट्रूप्स कभी इन्वॉल्व थे, जिसमें कि जो गुत्था उसमें 4 करीब इंडियन और 7 चाइनीज़ घायल हुए। ना फर्दर ईस्ट में पेंगोंगसो में ये 5 या 6 मई को दोबारा 5-6 मई को हुआ पेंगोंगसो के इलाके में, जिसमें ये करीब 250 ट्रूप्स इन्वॉल्व थे और उसमें दोनों तरफ की थोड़ी झड़प में लोगों को चोटें लगी ना। ये जो नक्शा मैं दिखा रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग नक्शा है। ये अगर आप देखो तो ये पेंगोंगसो लेक है। मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसमें देखिए कि जो दाहिने तरफ ये लाइन दिख रही है, ये हम मानते हैं कि ये LAC है, क्योंकि इसके एकदम ईस्ट में एक पोस्ट है जिसका नाम है सिरिजाप पोस्ट, सिजाप 1। तो 62 की लड़ाई में धन सिंह थापा जी जो हमारे लखनऊ के ही थे, तो उनको परमवीर चक्र मिला था इसके लिए। और चाइना कहता है नहीं जी, ये वाली लाइन जो है ये इधर दिख रहा है, ये चाइनीज़ क्लेम लाइन है कि हमारा क्लेम यहाँ, ये जो है ये फिंगर
4 है। हालांकि वो कहते हैं कि इसके आगे तक है हमारा, लेकिन फिंगर 4 यहाँ तक वो कहते हैं कि हमारा इलाका है। तो ये यहाँ तक घुसे थे ना। पेंगोंग त्सो जो है ये एक तरह से एक ट्रैप्ड सी है, पूरा सलाइन वाटर है, कोई मरीन लाइफ नहीं है, और करीब 135 किलोमीटर लंबी है, 600 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, वाइडेस्ट करीब 6 किलोमीटर है। इसका 45 किलोमीटर जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो हिंदुस्तान के पास है, बाकी जो 90 किलोमीटर है ईस्ट में वो चाइना के कब्जे में है। इसके अगर गौर करो तो ये जो पहाड़ियाँ ऊपर से नीचे आ रही हैं इसको चैंगचेनमो पहाड़ियाँ बोलते हैं, और इसमें से अगर आप देखोगे ये जो आ रही हैं ये सारे जो हैं एक तरह से स्पर्स हैं, एंड जिनको कि हम लोग फिंगर्स बोलते हैं। तो ये जो है ये फेमस फिंगर 8 है, ये फिंगर 4 है, और डिटेल इसका आपको इसके बाद दिखेगा। हाँ ये देखिए, ये चाइना, ये इंडिया का क्लेम है, ये चाइना का क्लेम है, और इसके बीच में जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का इलाका है ये 8 किलोमीटर है। तो जो ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि करीब 60 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ने दबाया, तो ये वो इलाका है। इसके इन्होंने पहाड़ियों के ऊपर यहाँ पे उन्होंने अपना बंकर और पिल बॉक्सेस चाइना ने बना लिए हैं, तो इस इलाके में उनका काफ़ी कंसंट्रेशन है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कारगिल की लड़ाई के दौरान जब हमारी फ़ौजें वहाँ से आ गई तो उन्होंने यहाँ एक रोड बना ली थी, जो पिछले नक्शे में अगर आप देखो ये रोड बनी हुई दिख रही है, और जो इन्होंने तब भी फिंगर 4 पे एक बंकर बनाया था जो इंडिया ने उखाड़ दिया था उसके बाद। तब इन्होंने इतना किचपिच नहीं किया था, लेकिन अब से वो वहाँ जम के बैठ गए हैं। तो ये जो है इलाका ये प्रॉब्लम एरिया है। अच्छा, 5 मई को पहला स्टैंड ऑफ हुआ नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो पे, और एक वीडियो ने दिखाया कि आपस में उन्होंने फिस्ट फाइट हुई, स्टोन चले, और 10-11 मई को एक दूसरा हुआ। ओवरऑल जो थी अपने अपने एरिया में लोग पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन इस बार जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। फिंगर 5 के एरिया में जो चाइनीज़ जो सोल्जर्स थे वो आ गए, और डिसंगेजमेंट उसके बाद दोनों साइड में हो गया। ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये लाइट पे आया है कि इसमें जो लड़ाई हुई उसमें चाइनीज़ जो थे वो तैयार होकर आए थे लाठी और वो जो बार्ड वायर और सबसे। सोचो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 1996 के पैक्ट में ये है कि हथियार यूज़ नहीं करना है, तो वो दूसरे हथियार यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये चाइना की अगेन ये जो है बेईमानी का एक सबूत है। एक मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 60 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने कैप्चर कर रखा है। अब हम लोग इसको एक अगला देखते हैं कि एक और थोड़ा ईस्ट में जाते हैं, गलवान का इलाका। अगर आप देखिए ये नक्शा 2 पार्ट में है। पहला पार्ट पहले आप देख लो, ये दुर्बुक एक जगह है, दुर्बुक से आप सीधे जाओ, एक आपको गलवान दिख रहा है, और इसके ये जो नदी दिख रही है ये श्योक नदी है। आप आगे जाओ, ये दौलतबोग ओल्डी, ये रोड जा रही है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और ये वाला नक्शा अगर आप देखो, इसमें आपको दिख रहा है पहले डेमचौक, जहाँ पे कि इंडस इंडिया में आती है। दूसरा फिंगर एरिया, ये जो दिख रहा है ये फिंगर एरिया है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं। इसके बाद ये एरिया जो है ये गलवान का एरिया है। ये गलवान, इसके नीचे यहाँ पे PP14 है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ये गोगरा पोस्ट है, यहीं पे हॉट स्प्रिंग है। तो ये इलाका जो है 15 और 17, गोगरा और हॉट स्प्रिंग जो है ये गलवान के नॉर्थ ईस्ट में है, और ये लेह से रास्ता आती है, लेह से दौलत बेग ओल्डी को जो रास्ता जाती है, जिसका कि ये डिटेल इधर दिखाया है ना। 2010 में भारतवर्ष ने एक निर्णय लिया कि हमको, उसके पहले क्या था, हम लोग भी जिसको कहते हैं बहुत ही डरे सहमे से रहते थे। हर बार आता था, जो अगर आज हम लोग सिविलियन भाषा में बात करें कि वो एक टीप मार के चला जाता, तो हम लोग चुप रहते थे कि नहीं भाई सड़क नहीं बनाओ, नहीं तो चाइनीज़ घुस आएंगे।
2010 में एक निर्णय लिया गया, नहीं जी हमें तो बनाना है सड़क, ये तो हमारा इलाका, हमें बनाना चाहिए। 2010 से काम शुरू हुआ, जिसको कि गति मिली 2014 में आके। तो ये सड़क जो है दौलत बेग दरबुक श्योक दौलत बेग उल्टी 255 किलोमीटर की सड़क जो है ये इस 10 साल में बनी है, जिसमें कि इसमें इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो था वो है वो ब्रिज, श्योक नदी के ऊपर 430 मीटर का एक ब्रिज बना है, रिंशन ब्रिज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस इस रोड की क्या है? पहले क्या होता था, 3-4 दिन लग जाते थे लेह से, 8 दिन लग जाते थे दौलत बेग उल्टी पहुंचने में। अभी तो ये एक दिन के अंदर बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि 255 किलोमीटर तो ट्रैवल और बढ़िया रोड बनी है। तो यहाँ से क्या हुआ कि दौलत बेग ओल्डी में क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। एंड ये जो है दौलत बेग ओल्डी जो है ये बिल्कुल काराकोरम पास के नज़दीक है। अब आप इसको मिलाइए पिछले साल का जो अमित शाह का स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में, जब उन्होंने कहा था कि अक्साई चेन हमारा हिस्सा है और हम इस पर कब्ज़ा करेंगे। तो अभी उसमें जो ज़रूरी ये है कि हम इसके ऊपर दौलत बेग ओल्डी हमारे काबू में रहे। दौलत बेग ओल्डी के ईस्ट में जो इलाका है वो कहलाता है डेप्संग प्लेन। वो बिल्कुल प्लेन एरिया है जिसमें कि टैंक भी चल सकते हैं। पहले हमारी एक बटालियन रहती थी, अब वहाँ पे एक ब्रिगेड पहुँच गई है। तो वो क्या है कि चाइना उधर से घुसने की कोशिश करता है, कर सकता है। क्यों कर सकता है? उसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज़ कि वो जो उसका एक CPEC जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, काराकोरम पास के थ्रू, जिसको बोलते हैं काराकोरम हाईवे, उसको डेप्थ देने के लिए। और क्या है कि यहाँ से काराकोरम पास उसका सेफ हो जाएगा, जिससे कि इंडिया काराकोरम रेंज को पार नहीं कर पाएगा। तो ये उसका दूसरा इंटरेस्ट है। तीसरा क्या इंटरेस्ट है कि जो रिज है इसी से एडजेसेंट जो है सियाचिन ग्लेशियर है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर को थ्रेटन करेगा और यहाँ से वो श्योक नदी में आ सकता है। ये भी कुछ लोगों का मानना है कि चाइना के पास क्या है कि चाइना दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन ये जो है माइक्रोचिप नहीं बनाते हैं, सिर्फ माइक्रोचिप 5% बनाते हैं। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर की माइक्रोचिप बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए। तो इसलिए उसको श्योक का पानी चाहिए। आगे गलवान का भी यही होगा, तो लेकिन श्योक का पानी चाहिए, इसीलिए वो यहाँ भी आना चाहता है। दूसरा, पाकिस्तान को एक मॉरल बूस्टर देना चाहता है कि वो अगर इधर ससर रिज पे ये आ गए और उस साइड में अगर वो पहुँच गए, पाकिस्तान पहुँच गया, तो सियाचिन पाकिस्तान को मिल सकता है। तीसरा ये है कि श्योक के थ्रू आकर के वहाँ से नुब्रा वैली एंड ले को थ्रेटन किया जा सकता है। तो इसका स्ट्रेटजिक बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा, जो चाइना का एक और कंसर्न है, कंसर्न ये है कि जो इसमें अगर डेप्संग प्लेन में अगर हम वो आ गया, हिंदुस्तान पहुंच गया, तो उनको ख़तरा हो सकता है। एंड अभी जो है इंडिया के पास C-17 है लॉजिस्टिक्स के लिए कि शॉर्ट टेक ऑफ लैंड एंड बड़े से बड़ा 70 टन का जहाज़ है, 70 टन कैरी कर सकता है। दूसरा, यहाँ पे तुम्हारे फाइटर्स लैंड कर सकते हैं। तो ये चाइना को बहुत चिंता है इसकी वजह से, इसलिए उन्होंने 2013 में डेप्संग में घुसने की भी कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं, उनको 13 दिन के बाद वापस जाना पड़ा। एक और रास्ता है, वो लेह से क्या है, खारदुंगला के ऊपर से आकर के, इसमें क्या है, इसमें चंगला से ऊपर पास से आते हैं ये जो दारबुक श्योक रोड पे, उसमें खारदुंगला रोड क्रॉस करके, और जो आगे खारदुंगला से हम लोग आगे जाते हैं तो एक ससोमा जगह है, ससोमा से सासेरला पास क्रॉस किया और मुर्गों पे आके इस रास्ते से वो मिल जाता है। लेकिन अभी उस पर काम नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये वो रास्ते हैं, दोनों रास्ते आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कि हेमिस जो कि ले के पास में है, वहाँ से चले, एक जो है ये चांगला क्रॉस किया, दरबुक से वो आगे गए, पनामिक होते हुए मुर्गो पहुँच गए। तो ये जो है दारबुक श्योक रोड है और ये जाके दौलत बेग ओल्डी पे पहुँच गया। दूसरा रास्ता है ये हेमिस से, जो ले से खारदुंगला क्रॉस किया, खारदुंगला के बाद ससोमा पहुँचे, ससोमा से
सासिरला में टेक्निकली प्रॉब्लम है, इसलिए उसमें भी वो रास्ता बन नहीं रही है और मुर्गों पे आ गए। नाउ लेट्स कम टू गलवान। नाउ ये तो देखिए श्योक रोड है, जो डीबीओ रोड है ये है, और इसके बगल में ये श्योक का बेड है। यहीं से एक ईस्ट में देखिए एक नाला जा रहा है जिसको बोलते हैं गलवान नाला, और इसी में ये जो घाटी है ये गलवान वैली है। जो 1960 जो बॉर्डर पॉइंट था ये 1960 में यहाँ तक चाइना थे, तो ये एरिया कभी भी आज के पहले डिस्प्यूटेड नहीं था, लेकिन अब इसका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई है वो अभी हम जानेंगे। गलवान रिज जो है वो हाईएस्ट रिज है। पहले चाइना को ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम ये डरबुक श्योक रोड बना लेंगे, तो अब बना लिया है। तो अब वो इसको जो फौज में होता है दो ढंग से डोमिनेट करते हैं, या तो बाय ऑब्जर्वेशन या बाय फायर, या ऑब्जर्वेशन फायर दोनों से। तो आपको याद होगा करगिल में क्या हो रहा था कि हमारी जब गाड़ियाँ जाती थी पाकिस्तान ऊपर से उस पर फायर करता था, तो ऑब्जर्वेशन फायर दोनों से था। तो हमारी तो ये भी है, जो गलवान रिज है वो हाईएस्ट रिज है, तो वहाँ आके वहाँ से वो ऑब्जर्वेशन चाहता है। और उसके आजकल हाविट्जर्स अगर है तो सोचेगा कि अगर ऑब्जर्वेशन मिल गया तो आर्टी फायर भी ला सकता है। अब तो वो 18 जून से वो ये भी कहना है कि भाई गलवान वैली पूरी ही हमारी है, जिससे कि वो बिल्कुल किनारे तक आ जाए और जिससे आ करके वो इस रोड को डोमिनेट कर सके, ये उसका इरादा है। दूसरा एक और इरादा है कि अभी हिंदुस्तान ने क्या किया, ये डरबुक श्योक तो बना लिया, अब उन्होंने गलवान वैली के थ्रू एक रास्ता बनानी शुरू की थी PP14 तक, जो हमारा जहाँ तक हम जाते थे, जिसके कि ईस्ट में LAC हमारी तरफ से थी। उससे से आगे जो है वो G219 है, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है। तो चाइना को भी खतरा हो गया कि कहीं अगर ये हुआ तो कल को इंडिया उस हाईवे को इंटरडिक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो गलवान की ये इम्पोर्टेंस है। लेकिन आप समझ लो कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भगवान की भी कृपा रहती है। तो कल बरसात हुई कस के, जिससे कि वो काफ़ी कुछ हिस्सा जो है उनका अपना कैंप ही बह गया। चाइना का जो उन्होंने आके अंदर PP14 के पीछे जो उन्होंने बनाया था वो बह गया, दो हिस्सों में बट गया। तो जो ये है, इंडिया ने उनके क्लेम को पूरी तरह गलवान वैली रिजेक्ट किया, क्योंकि 62 में कोई क्लेम था ही नहीं उनका ना। गलवान पे हुआ क्या, पहली चीज़ मई में आके उन्होंने ये हम लोगों ने नोटिस किया गया कि गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग और PP14 तक वो आ गए हैं। तो ये इस तरह से लगा कि जैसे कि वो यहाँ पर रहने की तैयारी से आए हैं। इंडियन ट्रूप्स ने उनको ब्लॉक किया, उसके बाद उनमें फेस ऑफ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 6 जून को एक मीटिंग हुई। चुशूल जो फिंगर 8 के नीचे आपने देखा होगा, पेंगोंग त्सो के दक्षिण साइड में है, वहाँ पे चुशूल है हिंदुस्तान का, और वहीं LAC की परली तरफ एक जगह है मोल्डो चाइना के पास साइड में है। तो मोल्डो में मीटिंग हुई जिसमें कि ये डिसाइड हुआ कि हमारे कोर कमांडर थे जनरल हरिंदर सिंह 14 कोर के, और उनके साउथ जिनजियांग डिस्ट्रिक्ट के लियोलियन मेजर जनरल लियोलियन थे। तो इनमें आपस में हो गई कि हम डीएस्केलेट करेंगे और डिसंगेजमेंट रेसिप्रोकल बेसिस पे। 15 जून को जब ये देखा गया कि वो नहीं हुआ, तो 16 बिहार जो वहाँ पे मौजूद थी उनके CO साहब कर्नल संतोष साहब गए, और उनका एक टेंट अभी भी लगा हुआ था ऑब्जर्वेशन पोस्ट, तो उनका इसको हटाओ PP14 पे। अब क्या हुआ, मार्ड एंड उसमें शाउटेड इन मिस्ट्री है, लेकिन बॉटम लाइन है कि उसमें टेंट में आग लग गई। वो लोग तैयार थे, प्रीमेडिटेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी तैयार। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इसके पहले तिब्बत से कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो है उन्होंने कलेक्ट कर रखे थे, जो हाथ के अनाम कॉम्बैट के लिए फिट होते हैं। तो वहाँ पे जो हुआ जिसमें कि वहाँ छोटी सी जगह है कि मतलब पॉइंट है, एक लेज जैसा है, तो 2 आदमी खड़े हो सकते हैं वहाँ। समझ लो कि उनके भी आदमी आ गए। पहले हमारे CO साहब गए थे और CO साहब के साथ एक छोटी टीम थी, पहले एक टीम गई, फिर CO साहब गए, उसके बाद करीब
फिर जब उनको उन्होंने मारा तो बाकी लोग भी पहुंच गए। उन्होंने पत्थर और डंडे इन सब का इस्तेमाल किया। फिर हमारे यहाँ से भी गए, तो इसमें इसके अलावा भी 3 पंजाब, 3 RT-3 मीडियम रेजिमेंट, इसके लोग भी थे, वहाँ पहुँच गए। एंड हमने अपने डिक्लेयर किया कि हमारे 20 आदमी मरे, जिसमें कि हमारे CO साहब भी थे, कल संतोष साहब। उन्होंने कहा कि कैजुअल्टी हुई हैं, लेकिन कितनी हुई है ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन 2 जगह से कुछ खबरें लगी हैं। एक ताइवान के सोर्सेज से इंडिया को पता चला, तो ANI ने कहा कि 43 आदमी, उन्होंने कितने हेलीकॉप्टर उड़े, कितने गए, उससे उन्होंने अंदाज़ लगाया। एक अमेरिकन पेपर ने रिपोर्ट किया है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की बिना पे कि उनके 35 आदमी मरे, जिसमें कि एक सीनियर ऑफिसर भी है। फिर उसके 2 दिन के बाद उन्होंने हमारे 10 आदमियों को लौटाया। ये भी कहा जा रहा है कि हमने उनके एक सीनियर रेजिमेंटल कमांडर को पकड़ रखा था, उसको छोड़ा, उनका भी सीनियर ऑफिसर मरे ना। इसमें काफ़ी कुछ, पहली चीज़ तो ये हुआ कि 1996 के पैक्ट को जो है, अकॉर्ड को खारिज कर दिया गया कि अब अगर तुम्हारे ऊपर कोई, तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम हथियार का बेशक इस्तेमाल करो, लोकल कमांडर कर सकते हैं। पहला डिसीजन हुआ। दूसरा, चाइना क्या बोल रहा है कि भाई तुम अमेरिका के भरोसे मत रहो, हम तुम्हारे माई बाप हैं। मैं भी बताऊंगा क्यों वो अपने को हमारा माई बाप मानने को तैयार है कि हम लोग आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन उन्होंने भी कहा कि बहुत टफ मैसेज दिया कि इंडिया ने इनिशिएट किया। अरे इंडिया अपने 20 आदमियों को मारेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा, हमारे जयशंकर साहब ने भी बोला कि प्री मेडिटेटेड था, टफ स्टेटमेंट चले। उसके बाद 22 तारीख को दोबारा हुई मीटिंग, एंड दोबारा जो मीटिंग हुई कोर कमांडर्स की, वही मोल्डो में हुई, जिसमें कि ये तय हुआ कि भाई अब किसे रिव्यू होगा। थिन आउट हुआ, ये एक खबर है जो इंटर रिपोर्ट है कि थिन आउट हुआ, लेकिन डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है। डीएस्केलेशन हुआ है, डिसंगेज, ये 2 अलग अलग वर्ड है। डीएस्केलेशन ये है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर हथियार ताने खड़े हैं, वो एस्केलेशन है। तो डीएस्केलेट हुआ, लेकिन डिसंगेजमेंट नहीं हुआ, अभी भी वो वहाँ पे मौजूद है। तो इसके चलते हुए आज एक मीटिंग 30 तारीख को भी हो रही है मीटिंग, जिसमें कि इस पे बातचीत होगी। इस दौरान एक वो जो WMCC एक मैकेनिज़्म है जिसमें कि आप MEA वाले बात करते हैं आपस में, वो एक अलग चल ही रहा है। इसी बीच में RIC हुआ, जिसमें जा कर के हमारे जयशंकर साहब ने, जब वो रशिया के साथ और चाइना के साथ था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई किसी पे किसी को अपनी मर्ज़ी थोपने का कोई हक नहीं है और हम इसको नहीं। मुझे लगता है कि चाइना इस बार पहली बार चौंक गया कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज तक कभी हमने उसको इतनी बुरी तरह से रिटॉर्ट नहीं किया था। नाउ लेट अस, ये तो एक्शन हो गया, लेट अस नाउ एनालाइज कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। नाउ इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली चीज़ है कि चाइना एक कॉन्सेप्ट में विश्वास करता है, मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा शुरू में मैंने एक बार बोला था कि उन्होंने बोला था कि दुनिया के बीच में हम हैं, दुनिया का सेंटर जो है हम हैं। तो 1000 साल पहले वहाँ एक डायनेस्टी थी, साउथ डायनेस्टी। तो उन्होंने ये कहा था कि चाइना इंसिडेंटली चाइना एक नहीं है, चाइना मोनोलिथिक। हम लोगों को लगता है इतना बड़ा सा देश है, नहीं। अगर आप देखिए जिनजियांग प्रॉब्लम, ईस्ट तुर्किस्तान है, वो उग्यूर मुस्लिम्स हैं। उसके नीचे तिब्बत डिफरेंट एथनिक स्टॉक है, दे आर नॉट हान। उससे आप नीचे आइए, यूनान उनका हिस्सा नहीं है। उसके अगर आप ऊपर जाइए तो हांगकांग जो एक प्रोटेक्टेड था, उसके ऊपर जाइए मंचूरिया, और उसके ऊपर जाइए तो आखिरी में कौन सा आता है, इनर मंगोलिया। तो ये सब चाइना के एथनिक पार्ट नहीं है, ना मंचूज उनके साथ हैं, ना मंगोल्स उनके साथ हैं, ना टिबेटन्स उनके साथ हैं, ना उग्यूर मुस्लिम्स उनके साथ हैं। तो चाइना बीच में का हिस्सा है। लेकिन BAZ में तो आज की तारीख में जो 1000 साल पहले उन्होंने कहा कि जी हम तो
हम जो है राजा हैं, ऊपर भगवान है और चारों तरफ बारबेरियन है। ये मतलब उनको ये चाइनीज इतने अज्ञानी थे कि उनको ये नहीं पता कि वेस्ट में कौन है, जो कि उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी देश है हिंदुस्तान, और इसके आगे भी वेस्ट में है, तो उनको कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो ये मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट वो आज भी यकीन कर रहे हैं। तो उन्होंने 1949 में जब देश का नाम रखा, जो 1949 में जो ये हुआ रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने देश का जो नाम रखा, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो मैंडारिन में उसको बोलते हैं जोंगुआ रेनमिन होंगचुआ, जिसका मतलब ये है कि भैया हम ही हैं मालिक, बाकी सब वेसल स्टेट्स हैं। इसीलिए वो सबको हिकारत की नज़र से देखते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट है कि चाइना अपने बराबर किसी को मानता नहीं है ना। दूसरा एक उनके यहाँ कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि एक वाइट पेपर पब्लिश हुआ है 2019 में, जिसमें उन्होंने 2 लैंडमार्क डेट्स दी हैं, 2021 और 2049। 2021 क्या है कि 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनी थी, CCP, और 2049 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। तो उनका कहना है कि हम जो हैं 21 तक बहुत पावरफुल नेशन होंगे और 2049 तक सोल सुपर पावर बनेंगे। ये उनका सपना है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद ये सही भी है बहुत हद तक। अगले साल तक ये उम्मीद की जा रही है कि वो रशिया से आगे निकल जाएगा, एक्सेप्ट न्यूक्लियर वेपन्स में रशिया अभी भी आगे है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में भी इट इज़ बिलीव्ड कि अगले साल तक मिलिटरली वो अमेरिका से भी आगे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं। एक हिंगस्विन करके एक जापानीज हैं, उन्होंने बोला है, वो क्या कहते हैं कि चाइना हैज़ नॉट वेरी रियल फ्रेंड्स। सुपर पावर बनने के लिए तुम्हारे अपने दोस्त भी होने चाहिए। आज उसके साथ कौन खड़ा है? उनके दोस्त होने चाहिए, वो चारों तरफ से हॉस्टाइल लोगों से घिरे हुए हैं। दूसरा जो है, अगर तुम्हारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट सबके साथ सेटल्ड होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तुम जो रीजनल डिफेंस मैकेनिज्म में सब होने चाहिए, उसमें भी तुम नहीं हो। या तुम्हारे पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन के हिसाब से चाइना सुपर पावर नहीं बन सकता। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज हमारे पास पैसा भी है। आज उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी पे $27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $3000 ट्रिलियन से ज़्यादा उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्सपोर्ट उनका मैक्सिमम है। जो उनकी इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट बेस्ड है। तो उनको लग रहा है कि आज हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, मिलिटरीली भी अब वो स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके यहाँ रिफॉर्म हुए थे करीब 10 साल पहले। तो उन्होंने क्या किया था कि ये करीब 2008 से हुआ कि उन्होंने जो पुराना था छोड़ करके 5 उन्होंने 7 सिर्फ कमांड बना दिया। हमारे 19 कमांड है, उनके 7 कमांड है। तो जो पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ है, पूरा एक वेस्टर्न कमांड है उनका, है। तो जिसका कि लोग अभी जिक्र भी कर रहे थे कि जाओ, उसका ये पूरा जो प्लान था उसका प्लान था। तो ये दूसरा पॉइंट है, जो कि वो सुपर पावर तो दिखाना चाहता है कि सुपर पावर है। तो कैसे दिखाएगा? तो उसने पहले जापान को सनकाकू में धमकी दी, फिलीपींस को धमकी दी, वियतनाम की बोट डुबो दी, नीचे आओ तो इंडोनेशिया को धमकी दी, अब इंडिया को कर रहा है। तो ये अच्छा, इंडिया के चारों तरफ जो सोच रहा है कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। पाकिस्तान उसके साथ है ही है, और नेपाल को, क्योंकि उसकी डीप पॉकेट्स है, और चाइनीज़ को घूस देने में कोई गुरेज नहीं है। और तीसरी चीज़ उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स। पोस्ट कोविड उनके यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोविड ने बिल्कुल उनकी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुँचाया है। पहली चीज़ जो है इसमें, जो हम कहते हैं कि जो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि CCP को लगता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं ये देश को वीक करती है।
तो उनकी लड़ाई जो है डेमोक्रेसी से है। आज अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड वॉर चल रही है इसीलिए। दूसरा उनका कहना है जो शी जिनपिंग है, जो इन्होंने 2018 में अपने को लाइफ के लिए प्रेसिडेंट बनवा लिया। ये चेयरमैन पहले सिर्फ एक माओ त्से-तुंग थे, तो अभी जो बन गए, लेकिन उनके खिलाफ उनके नंबर 2 और 3 ने सीक्रेट लेटर लिखे हैं लोगों को कि भाई ये सही नहीं है, तो उनकी अपनी पोजीशन थोड़ी सी वीकन हो रही है। पोस्ट कोविड काफ़ी उनका ट्रेड पे नुकसान हुआ है। आज की तारीख में उनका 1.2 जो IMF का जो है वो के एस्टिमेट, वो 1.2% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कहाँ वो 6 और 8% कर रहे थे, अभी 1.2। दूसरा जो उनके जो है MNCs वहाँ से निकल के आ रहे हैं। जापान ने तो $2.2 बिलियन दे भी दिया कि भाई तुम निकल जाओ वहाँ से, तुम कहीं जाके दुनिया में कहीं फैक्ट्री लगा लो, लेकिन ये छोड़ दो। तो ये भी चल रहा है, ये एक नया उनके साथ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में वो क्या है कि वो बेईमानी करते हैं, माहिर हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम पावर बन जाएंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह का वो परवाह ही नहीं करते हैं। वो एक्चुअली किसी कन्वेंशन की परवाह नहीं करते हैं। ये पानी का कन्वेंशन है जैसे 1997 का UN का, नहीं मानते वो। उसमें है कि राइपेरियन स्टेट्स का सबका राइट होता है, तो चाहे वो इंडस हो, चाहे, क्योंकि वो डेमचौक में जो आया है वो इंडस के पानी के लिए आया है। उधर गलवान में, उधर सॉरी मेकोंग में गया है तो उनको पानी रोक रहा है। इधर ब्रह्मपुत्र का पानी उसने जागमू के थ्रू निकाल लिया। जो नेपाल को वो कर रहा है, तो वहाँ अरुण नदी जो आती है, जो मेन रिवर जो आगे गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है, उसको वो डाइवर्ट करेगा। तो वो कोई कन्वेंशन मानता ही नहीं है। अच्छा, तीसरा एक क्या हुआ कि वहाँ जो 1 चाइल्ड नॉर्म हुआ, जिसका कि एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि वहाँ सिंगल चाइल्ड है, जिसकी वजह से कि अब एक अकेला बच्चा होता है तो माँ बाप का बड़ा प्यारा होता है। कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी में जब वो आते हैं तो रिलेक्टेंटली आते हैं, तो वो थोड़ा सा वो हिंदुस्तान के सिपाही की तरह से रफ एंड टफ नहीं है। तो वॉर फाइटिंग एक्सपीरियंस में PLA जो है, इट इज़ फाउंड लिटिल वांटिंग। दूसरा जो उनका जो BRI जो मेन प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPSE उसका एक हिस्सा है। इस तरह से बहुत सारे हैं, मेरे काफ़ी आर्टिकल्स भी हैं CPSE के ऊपर। तो जो ये चीज़ें हैं वो उसमें सारे वो NPA हुए जा रहे हैं। तो शी जिनपिंग की अपनी इंटरनल पोजीशन, जिससे चाइना की, अगर इसमें एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो 1957 में चाइना ने एक प्रोग्राम किया था जिसको कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उन्होंने कहा था कि हम देश को एक झटके में 5 साल के अंदर आगे ले जाएंगे, 1957 से 62, एंड दैट वाज ए टोटल अनमिटिगेटेड डिजास्टर। उससे नुकसान हुआ। फिर क्या हुआ? 62 उन्होंने किया, ध्यान बटाने की कोशिश की। कल्चर रिवॉल्यूशन में उनका नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया? वियतनाम से किया। वियतनाम ने उनको ब्लडी नोज दे दिया। तो ये जो है इनका जो है लोग क्वेश्चन करने लगे हैं, तो इसलिए ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी, वो उनकी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। पोस्ट कोविड हॉस्टिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, पहले ऑस्ट्रेलिया ने बोला, फिर यूरोपियन यूनियन ने बोला, 120 देशों ने मिलकर कहा इम्पार्शियल इंक्वायरी के। पहले तो चाइना मना कर रहा था, एंड उन्होंने WHO को भी अपनी पॉकेट में कर रखा था, लेकिन WHO को बाद में मानना पड़ा। अमेरिका ने फंडिंग बंद कर दी, उन्होंने कहा ये तो उनका हैंडमेडन हो गया है। अच्छा, अभी उसमें क्या है कि इंडिया उसका जो है उसका चेयरमैन है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन का एक गवर्निंग बॉडी होती है, उसका इंडिया चेयरमैन है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उनको लगता है कि इंडिया हमारे खिलाफ है। इंडिया ने भी वो साइन किया 120 देशों में से, तो उनको लग रहा है कि इंडिया हमारे खिलाफ जाएगा, और है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि जब ताइवान जो है वो बेसिकली, अगर देखो, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 1949 के पहले जो वहाँ पे थी गवर्नमेंट, वो थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड जो पार्टी थी वो थी कॉमिंटांग, और चियांग काई शेक वॉज द प्रेसिडेंट।
अभी जो शाई इन वेन जो नए प्रेसिडेंट बनी हैं लेडी, इंडिया इनको अभी तक कुछ इनसे नहीं रखता था, लेकिन अब से इंडिया ने इनको भी एक चाबी देने की कोशिश की है। कैसे चाबी देने की कोशिश की है इंडिया ने क्या किया है कि अब बीजेपी ने अपने 2 MP, वो मतलब हालांकि वो वर्चुअली अटेंड किया, लेकिन उनकी स्वेरिंग इन की, मीनाक्षी लेखी और एक क्या कंसल नाम है, एक दूसरा है, 2 MP ने अटेंड किया। तो चाइना को अच्छा नहीं लगा है ना। अभी क्या है, विद ऑल दीज थिंग्स चाइना को लग रहा है कि इंडिया बिल्कुल एक इरिटेंट बना जा रहा है। इरिटेंट बन रहा क्या है, एक तो डेमोक्रेसी है इंडिया की, थ्राइविंग डेमोक्रेसी, इसलिए दुनिया देखती है, और मतलब डिस्पाइट लोगों के एफर्ट के हम फिर भी प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं। इसीलिए वो हमको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो फेस ऑफ के नंबर बढ़ते जाते, जैसे बताया 660 2019 में उन्होंने इनकर्शंस किए, और हालांकि सक्सेसफुल नहीं, तो इस बार वो इंडिया को एक सबक सिखाना चाहते हैं। अच्छा, रिसेंटली इंडिया के USA के साथ टाई अप है, लेमुआ, कात्सा, कई उनके साथ हमारे जो हो रखे हैं, ऑपरेशनल भी हो रखे हैं। दूसरा, क्वाड का इंडिया पार्ट बन गया, जो कि चाइना रिजेंट कर रहा है, कहता है मत बनो इनका पार्ट, लेकिन हम हैं, जिसमें क्या है US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एक क्वाड प्लस है जिसमें साउथ कोरिया भी है, वियतनाम भी है। तो हमारा जो इनसे जो चल रही है यारी दोस्ती, वो उसको नहीं पसंद आ रही, क्योंकि उसको तो जैसे बताया मिडिल किंगडम कौन सा, उसको तो जी हजूरी वाले चाहिए। पाकिस्तान उनका वेसल स्टेट बन चुका है उनके। आप और देखो ना, आपको एग्जांपल देता हूँ, हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में बना, श्रीलंका पे नहीं कर पाया क्योंकि वो कुछ फ्री में नहीं देते। इंडिया की तरह या अमेरिका के मार्शल प्लान की तरह कुछ फ्री में नहीं देते, उस पर वो सब इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया तो 90 साल की लीज दे दी उन्होंने। तो ये जो है, उनको क्या लग रहा है कि इंडिया हमारी बात सुन नहीं रहा है। इसमें एक और चीज़ है, इंडिया भी वही कोशिश कर रहा है कि 2014 से हमने कि मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम शुरू किया, डिजिटल इंडिया शुरू किया। हम वो कर रहे हैं कि भाई ये जितने MNCs हैं तो हमारे यहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ। वो कहते हैं भाई मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हो, तो ये तो पापी पेट का सवाल है चाइना और इंडिया के बीच में। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप बॉर्डर एरिया में, उसको उम्मीद नहीं थी कि हम करेंगे, क्योंकि इतने सालों से हम नहीं कर रहे थे। लेकिन 2010 से जब मनमोहन सिंह जी के टाइम से शुरू हुआ, और अब वो 2014 के बाद प्रोग्रेस किया। आज उनको लगने लगा कि वो कहते हैं कि तुम क्यों अपनी, तो हमने कहा कि भाई आप बना रहे हो अपने साइड में LAC के, हम अपने साइड में बना रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है। वो कहते नहीं आप नहीं बनाओ क्योंकि ये तो हमारा हिस्सा है। तो हम कहते वो हमारा हिस्सा है, जहाँ आप बैठो वो हमारा हिस्सा है। तो एनीवे, ये दोनों में डिस्प्यूट है। इंडिया जो है, जब CPEC हुआ तो इंडिया ने उसका रेजिस्टेंस किया। इंडिया ने कहा कि भाई ये हमारी सॉवरेंटी को आप कर रहे हो, तो वो इससे नाखुश है। अब ये तो हो गई कि चाइना इंडिया से क्यों खफा है और उसका क्यों ये करना चाहता। क्या इंडिया में दम है कि इसके अगेंस्ट खड़े हो सके, अगला सवाल है जो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई बोले तो चाइना इंडिया से ज़्यादा मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक ऑपरेशनल आर्ट में एक प्रिंसिपल कहलाता है जिस कॉल्ड लैंकेस्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि किस इलाके में आप कितने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकते हो और कितना फोर्स लेवल अप्लाई कर सकते हो। तो अगर उस चीज़ पे आप गौर करो तो चाहे वो लद्दाख हो चाहे ईस्ट हो, अलग अलग अगर एक साथ हुआ तो कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर अलग अलग हुआ तो हम कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ। नंबर 1, यूज़ ऑफ एयरफोर्स। 62 की लड़ाई में हमने एयरफोर्स किसी कारणवश नहीं किया। अब दुनिया भर के लोग दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, लेकिन एज ए मिलिट्री प्रोफेशनल
आई विल रिफ्यूज़ टू कमेंट ऑन दैट। उस वक्त के जो आर्मी की लीडरशिप थी या पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने किस वजह से एयरफोर्स को नहीं इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आज अगर हम अपना एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए उनके अगेंस्ट एक ग्रेस फोर्स मल्टीप्लायर है। कैसे? हमारे जो एयर बेसेस हैं वो बेसिकली कौन से हैं? अंबाला, गोरखपुर, श्रीनगर। तो फुल लोड के साथ जो सीलिंग है वो हम क्रॉस कर सकते हैं, फुल लोड के साथ, एंड कम फ्यूल ज़्यादा लगे। उनका कहाँ है? होटन, लासा, गौरमो, वो सारे बहुत ही हाई हैं। तो वो उनके एयरफोर्स जो है उतना लोड नहीं लेके चल सकता, उतनी देर उसकी कैपेबिलिटी नहीं कि हवा में रह सके जितनी हमारी है। तो पहला हमारा एडवांटेज तो ये है। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जैसे कि यूज़ ऑफ C-17 एंड C-130, ये दो ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो शॉर्ट टेक ऑफ है। तो एयरफील्ड जैसे कि दौलत बेग ओल्डी जो छोटी एयरफील्ड है उससे भी टेक ऑफ कर जाते हैं। इनके इक्विवेलेंट इनके पास नहीं है, C-17 के इक्विवेलेंट नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, हमारे जो सुखोई 30 MKI उनके किसी से भी, अनलेस दे यूज J-22 जो कि 5th जनरेशन है, वो मेरे ख्याल है वो उसमें अभी डिप्लॉयड नहीं है। हाँ, एक चीज़ उसने की है, वो थोड़ी चालाकी है। J-10 उसने क्या किया, स्कार्डू उसने पाकिस्तान से वो ले से भी नीचे है, तो वहाँ वो, बट J-10 समथिंग लाइक MiG-21 है कोई ख़ास दम नहीं है। तो एयरफोर्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेटेड तो हमारा बहुत फ़ायदा है। दूसरा जो AD हमारी है, उनकी AD हमसे स्ट्रॉन्ग है, मैं मानता हूँ। उनके पास S-400 ऑलरेडी है, हमारी तो उन्होंने बोला कि दिसंबर तक आएगी, लेकिन हमारे पास उनके पास ऑलरेडी है। लेकिन जो हमारे तीनों चारों हैं, स्पाइडर है, पिचौरा है, ओजा AK है और आकाश, ये मिला करके हम होल्ड कर सकते हैं अपने आप को। दूसरा, हमारा जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है हाई ऑल्टीट्यूड में, वो उनसे ज़्यादा अच्छी है। जैसा उनका मैंने बताया कि उनकी कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी है। तो एक वो होता है जिसमें कि मतलब मजबूरी में फ़ौज में आए हो तो तुम पहले बार पे बोलोगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एक ऐसे हैं जो कि मतलब संतोष को बाबू को चोट लगी तो 3 पंजाब के और 3 मीडियम रेजिमेंट के जवान, जिनको उनसे लेना एक ना देना, तो साले कूद पड़े, कहते CO साहब को कैसे ठोका, मैं भी चलता हूँ। तो ये चीज़ जो है, अच्छा, तो ये जो इन चीज़ों के चलते इंडिया का अपना एक स्ट्रैटेजिकली जो मिलिटरली है, हम इतनी बुरी हालत में नहीं है जितनी बुरी हालत में लोग सोच सकते हैं। और ये हमने 15 तारीख को दिखा दिया कि जब आन पे आती है तो हम खड़े रह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि उनकी इकॉनमी हमारी तकरीबन 5 गुना बड़ी है। $27 बिलियन PPP पे, हमारे $5 बिलियन। अपने आप देख लो क्या है रेशियो। उनके $3 ट्रिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा $500 बिलियन। तो इकोनॉमिक्स में हम उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो ये बॉयकॉट का हमने किया, हालांकि उनके ट्रेड पे करीब 1.5% फर्क पड़ेगा। उनका ट्रेड, हमारा जो ओवरऑल उनके ट्रेड का सिर्फ जो एक्सपोर्ट का 1.5% है। लेकिन पहली चीज़ ये नेशन की विल है। दूसरा, इसको देख के बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे। तो ये चीज़ जो है, इसको हमको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग कर सकते हैं उनके अगेंस्ट ना, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो हमारा जो एक अच्छी चीज़ जो हो रही है पिछले 5 साल से, जो ट्रेड जो गैप है, जो एडवर्स ट्रेड रिलेशंस है, वो लगातार घट रहा है। 53 बिलियन, पिछली बार $48 बिलियन हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सी हमारी चीज़ें हैं जो हमारी इंडस्ट्री रुक जाएंगी। तो मेरे ख्याल में इसमें हम लोगों को बहुत सोच समझ करके इसको करना चाहिए, इमोशनली नहीं करना चाहिए। एंड जो जियोपॉलिटिकल है, इसमें क्या होगा कि इंडिया की एक और स्ट्रेंथ है जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है हमारी मैरीटाइम स्ट्रेंथ। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है,
वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर एक ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे बैठा है कैप की तरह। तो इसका फ़ायदा ये हमको मिल सकता है कि वहाँ को 6 डिग्री चैनल और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को हम डोमिनेट कर सकते हैं। उसमें दूसरा क्या है कि सबांग में, जो कि इंडोनेशिया में, उससे हमारा बेस फैसिलिटी है। एक काकूस आइलैंड पर अभी जो ऑस्ट्रेलिया से बात हुई है मोदी जी की, वो हमको मिल गया। तो ये पूरा इस एरिया का जो इंडियन ओशन में उसकी ट्रैवलिंग है, उस पर हम, जो मैरीटाइम ट्रैवलिंग है, उस पर हम काबू कर सकते हैं ना। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्यों चाहते हैं ऐसा करना? चाइना की इकॉनमी ट्रेड बेस्ड है, एक्सपोर्ट बेस्ड है, एंड 70% से ज़्यादा उसका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से निकलता है। अगर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में उसको तुम डिस्टर्ब करोगे, परली तरफ अमेरिका अपने चमचे चाटों के साथ बैठा ही हुआ है, तो जो साउथ चाइना सी में भी होगा तो उसको नुकसान हो सकता है। अभी आपने क्या गुआम में किया उनके साथ एक्सरसाइज, सेनकाकू जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में किया, मालाबार आप करते हो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो जो मैरीटाइम में है, तो जब एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर आप अप्लाई करोगे अगेंस्ट चाइना, तो आप इतने कमज़ोर नहीं हो। नो, इंडिया को करना क्या चाहिए, ये लास्ट सवाल है मेरा। पहली चीज़ ये है कि उसने जो किया है, आपके जो इमीडिएट नेबरहुड में आपके खिलाफ विद्रोह पैदा करने की कोशिश की है। केस इन पॉइंट इज नेपाल। चाहे पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान से कोई उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को मरने दो, वो उसको इम्प्लोड होने दो। लेकिन असली चीज़ जो है कि नेपाल हमारे खिलाफ जाना, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। इंडियन डिप्लोमेसी को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और है, चाहे वो पावर रिलेशंस हो, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, चाहे कुछ भी हो, ओली साहब को जाना ही होगा, तभी जाकर के सिचुएशन इम्प्रूव होगी। तो हमको उनसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मालदीव्स ठीक हो गया, बांग्लादेश ने कोशिश की, शेख हसीना जब तक नहीं हुआ। हम जो श्रीलंका में भी जो अभी जो गोटाबाया आए हैं, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा, वो इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं जैसे महिंदा राजपक्सा थे। म्यांमार उनके खिलाफ हो चुका है। तो अभी जो है नेपाल हमारा जो है ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। दूसरा, अब तो जब तलवार खींच के दोनों खड़े ही हो गए हैं, तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं भाई? चाहे तिब्बत हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे जिनजियांग हो। जिनजियांग में पूरे चाइना में बर्थ रेट बढ़ रही है, उइगुर मुस्लिम की घट रही है। मतलब जो उन्होंने किया है, जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो यह चीज़ें हम लोगों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो जो उनके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्योंकि वो भी तो पैसे दे रहे हैं हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों को, इनको उनको, तो हमको भी उनके ये करने की ज़रूरत है, ये करना चाहिए। तीसरा, साउथ चाइना सी के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, ये भी उनकी हाई एंडेडनेस से, वो स्प्रेटली पे उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की, परासल पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, नए नए आइलैंड बना रहे हैं, दादागिरी वो दिखा रहा है। तो उनके साथ मिलकर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लास्ट ईयर हुई थी, जबकि इंडिया ने रशिया के साथ एक पैक्ट किया, और जो ईस्ट एशियन फोरम के टाइम पे, और व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई तक एक सीलिंग है जिससे कि गैस आ रही है। तो रशिया को भी चाइना से विमुख करने के लिए हमने ये कार्य किया है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसको हम लोगों को फर्दर लेके जाने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी कल परसों आसियान के 10 कंट्रियों ने भी मिल करके चाइना के खिलाफ बोला कि अनक्लोज जो 1982 का है उसको तुम फॉलो करो, अपनी दादागिरी मत दिखाओ। तो हमें उनको, आसियान के कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हमें घटानी चाहिए, इन पार्ट्स में भी, इन पार्ट्स फेजेस में करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक बार में सब ख़त्म कर दें, हाँ, धीमे धीमे करके बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो पोस्ट कोविड जो MNCs हैं जो वहाँ से निकल रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे यहाँ आए, और हमको उसके लिए लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन तीनों चीज़ों पर बहुत जोर देना। एंड कैपेसिटी जब मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो
बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे टेक्निकल सेक्टर में हो, चाहे HR सेक्टर में हो, लेकिन तीनों में करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, क्योंकि अगर तुम MNC को यहाँ ला रहे हो और उसको बोलो जी झांसी में हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 24 घंटे में 2 घंटे पावर आती है, बाकी तुम अपना इन्वर्टर पे काम चला लेना, तो वो कहेगा मेरे कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारे आऊँगा, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो अगर उनको लाना है तो हमको इन चीज़ों पे बहुत ज़ोर देना पड़ेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास पानी, बिजली, जो तुम्हारे प्रोफेशनल्स हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए क्वालिटेटिवली। एंड वो हमारे क्या है कि जब हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं सिर्फ इंजीनियर्स की बात करते हैं, सॉरी, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, तीनों। HR साइड में लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल तक, लिंग्विस्ट, सर्विसेज, होटल, टैक्सी ड्राइवर्स, लिंग्विस्ट, ये सब चीज़ों पे हमें पूरे पे बहुत ज़्यादा जोर देने, कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत जोर देने की ज़रूरत है। दूसरा, इस फेस ऑफ में एक चीज़ बड़ी फिर से निकल के आई है जो हमारी ट्रेडिशनल कमज़ोरी है, जो है स्ट्रैटेजिक डोमेन में, वो हमारी इंट की वीकनेस। हमको इंट की वीकनेस पे जोर देना चाहिए कि कैसे वो आ गए, घुस आए नकुला में या फिंगर 4 पर कैसे पहुंच गए। वी कांट अलाउ दैट। NTRO है, रॉ है, जो ड्रोन बेस्ड है, सेटेलाइट बेस्ड है। अब सेटेलाइट से वो वर्कर की जाने कहाँ गई, फोटो लोग लेके आ रहे हैं, तुम्हारा डायपाप क्या कर रहा था, सो रहा था। तो हम लोगों को इन पे भी जोर देने की ज़रूरत है, लेकिन ये तब होगा जबकि 1.58% से तुम्हारा डिफेंस बजट बढ़ेगा। तुम्हारा इसका 50% जो है वो एक्चुअली पे और पेंशन पे जा रहा है। तो जब तक इस पे तुम जोर नहीं दोगे, मेक इन इंडिया जो डिफेंस कॉरिडोर है, 3 साल से मैं सुन रहा हूँ ये बातें, चले जा रही हैं 2018 से कि एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है यूपी में। अभी तक तो ढिल्ला नहीं बना है, अभी तक तो एक फैक्ट्री भी ऑपरेटिव नहीं हुई है, सिर्फ बातों बातों में हो रही है। क्या आप एक भी फैक्ट्री को, एक भी MNC को, आपने कोरबा में 2019 में फरवरी में कोरबा में अमेठी के पास AK-203 की फैक्ट्री लगाई, वो पैक्ट अभी तक रशिया से फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो आप कैसे जीतोगे लड़ाइयाँ? तो इन चीज़ों पर जोर देने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना, इसको कंटेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। चाइना पास मास्टर है, चाइना 2 चीज़ों में बहुत माहिर है, साइबर वॉरफेयर में और दूसरा साइ वॉरफेयर में। इन दोनों पे हमें लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल लेवल पे तो चलता रहना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे चलता रहना पड़ेगा। आर्मी को स्टेट पास की ना वो गलवान में घुस सकें आगे, ना डेप्सांग में घुस सकें, कहीं पे भी नहीं घुस सकें, ये हमको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और जो हमारी जो होनी चाहिए, बॉटम लाइन सिंपल होनी चाहिए कि पहले तुम अप्रैल के, अगर तुम डीएस्केलेशन चाहते हो तो पहला काम करो कि अप्रैल की जो जहाँ तुम थे वहाँ पहुँच गए। दूसरा, LAC को आप डिफाइन कर दो, एग्जिस्टिंग LAC कर लो, चाहे 1962 की LAC कर लो, LAC डिसाइड कर लो कि ये LAC है, इसके जब तक ये नहीं होगी तब तक आगे हम बात नहीं करेंगे। बाउंड्री डिस्प्यूट इससे अलग होना चाहिए। ये जो टॉक्स चल रही हैं, ये बाउंड्री डिस्प्यूट से ये मतलब मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। बाउंड्री डिस्प्यूट से अलग है, और एक टाइम बाउंड मैकेनिज्म, ये नहीं होना चाहिए कि हर साल गए कहीं, एक बार दिल्ली में वो आके उन्होंने मुगलई खा लिया और अगली बार चाइना में जाकर के चाइनीज़ खा के आ गए, और 22 राउंड हो गए एंड 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो MEA के इतने मोटे मोटे लोग जाते हैं, तो कोई इनकी किसी की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए कि क्या किया तुमने, नहीं है तो उसको सैक करो। क्यों नहीं उनको सैक करते हो? आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। वी शुड बी टुगेदर, देन ओनली वी कैन फाइट इट आउट, एंड दिस इज नॉट द टाइम व्हेन वी शुड हैव आवर पेटी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, एंड onus is on the government to create that togetherness. And
India has shown in its history of 70 years of nation, Indian nation, that we have been together whenever there was a crisis. And this is the time when we should be together. I finished. Thanks for your patience. Jai Hind.